سرحد پار سے دہشت گردی کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں۔ خطے میں امن کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں تجارت، کاروبار اور ہر قسم کے باہمی تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ 2400 ارب محصولات کے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے محصولات کے کیسز کا فیصلہ جلد کرائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں۔ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کر کے ملک کو قرضوں سے نجات دلانی ہے۔ IMF کے اگلے پروگرام کے لیے بھی ہمیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کرنی ہے، اور وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے۔ جو آلریڈی جو لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لگانا تو ویسے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ یہ لون کے رول اوورز اور مزید قرضے یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ شہباز شریف نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا کہ پچھلی حکومت میں ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ 2400 ارب روپے کے محصولات جو ہیں وہ اس وقت یا ٹرائیبونلز کے پاس ہیں یا عدالتوں میں وہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مہربانی کر کے یہ بہت بڑی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ تمام ہائی کورٹس کو تمام وہاں پر ان کو یہ اگر فرما دیں کہ جو اس وقت جو کیسز ہیں سب جوڈس ان کا جلد سے جلد میرٹ پر فیصلہ ہو جائے۔ کل الحمدللہ میں نے فائنل میٹنگ لی ہے اور جو FBR کو 100% ڈیجیٹائز کرنے کے لیے وفاقی کابینہ اراکین نے تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ حکومتی سطح پر کفایت شعاری کی ترویج کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ کابینہ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہولڈنگ کمپنی تشکیل کرنے کی منظوری دے دی، جو PIA کی نجکاری کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب، سٹاف لیول معاہدہ طے پایا۔ پاکستان کو $1.1 ارب ملیں گے۔ IMF اعلامیے کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے آئندہ ماہ آخری قسط ملے گی۔ آخری قسط ملتے ہی $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا۔ مذاکرات کامیاب، پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو IMF سے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے آئندہ ماہ $1.1 ارب کی قسط ملے گی۔ آخری قسط ملتے ہی $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے IMF اہداف پر بروقت عمل کیا گیا۔ پاکستان نے ادارہ جاتی اصلاحات اور ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ اعلامیہ میں پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ حالیہ مہینوں میں IMF شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ نئی حکومت نے بھی پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے ان پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پہلے جائزے کے بعد کے مہینوں میں پاکستان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہوئی۔ بااعتماد پالیسی مینجمنٹ کی پشت پر ترقی اور اعتماد کی بحالی جاری ہے اور جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس سال پاکستان میں ترقی معمولی رہنے کی توقع اور افراط زر ہدف سے کافی زیادہ ہے۔ ادھر وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ FBR نے نئے قرض پروگرام کے حصول کے لیے خصوصی ریونیو پلان تیار کر لیا ہے۔ جون میں نئے بجٹ کے ساتھ اہم ترین ٹیکس اقدامات کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ فائنانس بل کے ذریعے 9 لاکھ دکانداروں کو فکس ٹیکس میں لانے کی منصوبہ بندی کر دی گئی ہے۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں اظہار خیال۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان کے لیے حمایت پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف سید عاصم منیر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و سلامتی اور دو طرفہ دفاع اور سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ ملاقات میں شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
सऊदी वज़ीर दिफा जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सऊदी मुसल्लह अफवाज और इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल अत्तीबी के मुआवन वज़ीर दिफा और दीगर आला अस्करी क़यादत मौजूद थी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने वाज़ेह किया, सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी के जज्बात और हमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास कल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत चारों सूबों के वुज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत साबिक वुज़रा अपनी मुद्दत के दौरान होने वाली एपिक्स कमेटी के इजलासों से मुताल्लिक ब्रीफ करेंगे। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम BISP से मुतालिक उमूर को ज़ेर गौर लाया जाएगा। मज़कूरा प्रोग्राम से मुतालिक सूबों को कहा जाएगा कि वो अपने इक़दामात को कमेटी के साथ शेयर करें। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात, आइंदा इन्वेस्टमेंट से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। बानी PTI एहतजाज तोड़फोड़ के मजीद 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद, शीरी मजारी समेत 11 मुल्जिम भी दोनों केसेस से बरी हो चुके। बानी PTI के खिलाफ थाना बाराकहू में 2 मुकदमात दर्ज थे। अहम खबर आपको देते हैं। सिंध काबीना का सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। ये बताना है तर्जुमान का। किसान कार्ड सिर्फ हारियों को जारी किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से बता दिया गया है। मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद सलीम, बताइएगा किसानों की फलाह के लिए क्या फैसले किए गए? जी, सिंध काबीना का सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि किसान कार्ड सिर्फ हारियों को दिया जाएगा। ये उन किसानों को भी जारी होगा जिसकी 12 एकड़ जमीन है और खुद काश करता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि अगले 6 माह में किसान कार्ड पूरे सिंध में जारी कर दिया जाएगा। गंदम की खरीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। किसी कुदरती आफत की सूरत में किसान कार्ड के जरिए हारियों की मदद की जाएगी। वज़ीर आला का एक मज़ीद कहना था कि आज काबीना ने किसान कार्ड शुरू करने के हवाले से तबादला ख्याल किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की है कि किसान कार्ड शुरू किया जाए। ज़राअत की साइंटिफिक बुनियादों पर तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि अगले बजट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हर जिले की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को किसान कार्ड शुरू करने के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत दे दी है। चीफ सेक्रेटरी महकमे ज़राअत, महकमे आगबाशी और महकमे रेवेन्यू के साथ इजलास करके किसान कार्ड शुरू करने की सिफारिश देंगे। ठीक है मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़े के 5 मुल्जिमान की जमानत बाज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें, अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़ें। जब आतिशी असलहा बरामद ही नहीं हुआ तो मुतल्लिका शक का इतलाक नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कानूनी और अदालती इस्लाहात के लिए खुसूसी कमेटी का पहला इजलास। शहबाज शरीफ की कमेटी को अदालती इस्लाहात के लिए आइनी और कानूनी तरमीम का पैकेज तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ख्वाहिश है लोगों को इंसाफ जल्द और बआसानी फराहम हो सके। टैक्स के मामलात को अवाम बिलखसूस कारोबारी तबके के लिए आसान बनाया जाए। वज़ीर आज़म की कमेटी को टैक्स वसूलियों को मुयस्सर बनाने के लिए कानूनी तजावीज़ पेश करने की हिदायत की गई। शहबाज शरीफ की माली और टैक्स मामलात पर 2 हफ्तों में बुरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। NRTC और सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर निगरानी सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 1 के मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा, NRTC पहला फेज 2 साल के बजाय 1.5 बरस में मुकम्मल करे। मजीद कहा, पहले फेज में रेड जोन के 300 मकामात पर 1300 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेफ सिटी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कराची पुलिस ऑफिस में बनाया जाएगा। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। NRTC और सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर निगरानी सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 1 के मुआहदे की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया, NRTC पहला फेज़ 2 साल के बजाय
1.5 बरस में मुकम्मल करे। मजीद कहा, पहले फेज में रेड जोन के 300 मकामात पर 1300 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अब आपको बताएं, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे के मुस्बत असरात। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड की कदर 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट बढ़कर 92.5 सेंट पर पहुंच गए हैं। 2025 की मैच्योरिंग डॉलर्स बॉन्ड्स में तेजी से इजाफा हुआ। 2027 और 2051 में मैच्योर होने वाले डॉलर के बॉन्ड्स भी बढ़ गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन FBR मलिक अमजद की तनख्वाह मुंजमद कर दी। अदालत ने ज़ेरे इल्तवा टैक्स केस में बार बार याद दहानी पर भी जवाब जमा न करवाने पर तनख्वाह मुंजमद की। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालती हुक्म पर चेयरमैन FBR की तनख्वाह रोक दी है। आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। आपको बताएंगे, पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन FBR मलिक अमजद की तनख्वाह मुंजमद कर दी। अदालत ने ज़ेरे इल्तवा टैक्स केस में बार बार याद दहानी पर भी जवाब जमा न करवाने पर यह तनख्वाह फ्रीज की है। कर्ज लेना कैंसर से बड़ी बीमारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, हुकूमत IMF से मुज़ाकरात कामयाब होने को बड़ा कारनामा समझती हैं। IMF से $1 अरब मजीद कर्जा मिलेगा। मुज़ाकरात कामयाब हो गए और ये आज के पाकिस्तान के लिए मौजूदा नई हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है कि ये जो कर्जा है ना, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। कर्जा लेना और कर्जों पर गुजारा करना। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर का इस्तकबाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। अदलिया से उम्मीद है वो हमें इंसाफ फराहम करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के डाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक है, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट कोई हल निकालेगी। आपने हसन और हुसैन को देखा जो ऑलमोस्ट 7 साल बाद पाकिस्तान आए, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, जिसके खिलाफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट से वो एक दिन पेश हो गए और दूसरे दिन उनके सारे के सारे केसेस खत्म हो गए। हम अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी 45 साल इंतजार करके फिर ये न कहना कि इंसाफ नहीं हुआ था, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है। आपके होते हुए हम इंतजार कर रहे हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं, हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। एक्स और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज, रखिए हर खबर पर नजर।